Okay, once again, good morning, students. Today we are going to discuss the very important topic of the signal conditioning chapter, that is signal averaging, right? So, first of all, let us try to understand what is averaging, and then we will take some example to understand the concept behind the signal averaging. Okay, so हम सभी जानते हैं कि whatever measurement you are doing, right? All the measurements in real life are unavoidably affected by the noise, right? And noise is an unknown signal, जो कि आपको कहीं भी डिफरेंट सोर्सेस से नॉइज आ सकती है, ठीक है ना। अब वो जो नॉइज है वो आपके मेजरमेंट को किस हद तक अफेक्ट करेगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द टू एस्पेक्ट। दैट इज फर्स्ट इज व्हाट इज द मेजरांड। मेजरांड मीन्स व्हाट इज द क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट, ओके। एंड द सेकंड इज द सेंसिटिविटी ऑफ द डिवाइस, राइट। इसका मतलब है कि जो इंस्ट्रूमेंट आप काम में ले रहे हैं उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए वो कितना सेंसिटिव है, राइट। आगे चलते हैं अपन। Second thing is sometimes the signal under measurement is having low magnitude as compared to the noise component, right? ऐसा भी कई बार हो जाता है, like in medical field, if you are measuring the signal of ECG, EEG, etc., then under such conditions the signal magnitude is somehow less than the noise component. Okay, so in these particular cases it is required to reduce the noise, right? So some kind of noise reduction technique is required to suppress the noise. Now come to the aspect of the signal averaging again. So signal averaging is basically a signal processing technique which is mainly used in time domain, and its main aspect or main work is to strengthen the signal with respect to the noise, okay. And then it is basically a noise reduction technique, or you can also say that it is a noise smoothing technique, okay. And the ultimate aim to perform the signal averaging is to increase the signal to noise ratio. In the next slide we'll see what is signal to noise ratio, right? So signal to noise ratio is nothing but the ratio of signal power to the noise power, okay, and it is usually expressed in terms of decibels. If you see SNR is defined as the ratio of signal, this signal we want, right? It is a desired signal, and in denominator part it is a noise. It is an unwanted component. We don't want the noise to be appear in our measurement, okay. So if the noise will reduce, then our SNR will increase, and ultimately our desired signal component will increase. So the main aim of signal averaging technique is to improve the signal to noise ratio, okay. Now in general the value of 20 dB or more is recommended for data networks, whereas if you are working with your voice applications network, then SNR value of 25 dB or more is recommended. So what is the concept behind the averaging? देखिए एवरेजिंग का हम जनरल मतलब क्या मानते हैं कि सपोज आप एक मेजरमेंट कर रहे हैं तो और आपको उस पर्टिकुलर वेरिएबल जिसको आप मेजर कर रहे हैं उसका क्वांटिटी को मालूम करना है, उसका एवरेज वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस लेते हैं और फाइनली उन सबको ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास एक एवरेज वैल्यू आ जाती है, ठीक है ना। तो यही कुछ कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर काम लेंगे, और यहाँ पर जो SNR है, ठीक है ना, वो इंक्रीज होगा आइडियली इन प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ मेजरमेंट्स। इसको हम आगे समझेंगे कि ये किस तरह से काम करती है। बिफोर अप्लाइंग द एवरेजिंग टेक्निक to improve the signal to noise ratio, or you may say to reduce the noise level in the main signal, there are certain assumptions to be considered, right? The first assumption is the noise signal is random having zero mean, मतलब उसका जो एवरेज वैल्यू है वो हम जीरो मान के चलते हैं नॉइज सिग्नल का, ठीक है ना, और उसको हम रैंडम मानेंगे। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिग्नल एंड नॉइज आर नॉट को रिलेटेड टू ईच अदर, राइट। यहाँ कोरिलेशन का मतलब होता है कि दोनों सिग्नल जो हैं वो आपस में एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड हैं, ठीक है ना। सपोज वन सिग्नल इज इंक्रीजिंग, तो दूसरा सिग्नल क्या हो रहा है उस समय, उसका क्या वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इस तरह से वो कोरिलेशन को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। बट राइट नाउ हम ये मान के चल रहे हैं कि इन दोनों सिग्नल के बीच कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना, दे आर अनकोरिलेटेड रादर, राइट। एंड सेकेंड इज जो नॉइज के सैंपल्स हैं वो भी आपस में किसी तरह से कोई रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। तो इन एजम्पशंस को ध्यान में रखते हुए आगे हम समझेंगे कि ये सिग्नल एवरेजिंग कैसे काम करती है, ठीक है ना।
सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। मान लीजिए हमारे पास एक सिग्नल है, हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो ये हमारा उसका रेस्पॉन्स कर्व है। इट इज द कर्व बिटवीन सिग्नल वर्सेस टाइम, राइट। एंड सपोज दिस इज द नॉइज सिग्नल, ये रैंडम सिग्नल है, तो ये कुछ इस तरह का रहेगा, ये हम मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। इन थर्ड केस इफ वी ऐड बोथ दिस कंपोनेंट, ये हमारा डिजायर्ड सिग्नल है और ये है नॉइज, अगर हम इनको ऐड करें तो सिग्नल प्लस नॉइज जो है वो कुछ इस तरह से हमारे को मिलेगी, ठीक है ना। नाउ अवर एम इज टू रिड्यूस द नॉइज इन दिस सिग्नल, ओके। सो हमने क्या किया कि हमने 3 एक्सपेरिमेंटल सेटअप किए, काफी सारी रीडिंग्स ली, और हमारे पास ये कुछ रिजल्ट्स कुछ मान लीजिए इस तरह से आए हैं। ये एक्सपेरिमेंट 1 के रिजल्ट है, ये 2 के हैं और ये 3 के हैं, ठीक है ना। आगे हम इसको समझेंगे कि इसको कैसे हम काम में लेंगे। मान लीजिए एक पर्टिकुलर टाइम हम सिलेक्ट करते हैं 0.3 मिली सेकेंड, ठीक है ना। तो हमारे पास ये जो कैपिटल X1 है और X2 है और X3 है, ये बेसिकली सिग्नल प्लस नॉइज जो रिजल्टेंट सिग्नल है हमारा, वो वाला हमने लिया है, ठीक है ना। वेयर योर S1 इज योर डिजायर्ड सिग्नल एंड N रिप्रेजेंट्स द नॉइज सिग्नल, ठीक है ना। तो वहां पर उनकी वैल्यू मान लीजिए पहले केस में 0.3 मिली सेकेंड के ऊपर 0.707 वोल्ट है, दूसरे केस में 1.712 वोल्ट है और तीसरे केस में है 2.557 वोल्ट, राइट। अगर हम इसका एवरेज ले लें, इस x का एवरेज लें, तो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे और फिर इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। सो विल बी हैविंग x एवरेज एज 1.187 वोल्ट, ओके। अब जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं वो समझिए आप, कि जो भी आपने 3 इक्वेशन देखी उसमें SI अगर हम मान लें, SI का मतलब है S1, S2 और S3, ठीक है ना। ये बेसिकली हमारा डिजायर्ड सिग्नल है, मैंने आपको पहले ही बताया। इसकी वैल्यू 0.7769 वोल्ट है। वो कैसे है देखिए, देखिए ये हमारा सिग्नल है, ठीक है ना। अगर मैं 0.3 के ऊपर इसकी वैल्यू निकालना चाहूं तो यहाँ पर वो 0.7737 जो वोल्ट मैंने दिखाया है वो वाली वैल्यू है, ठीक है ना। अब इस सिग्नल का एवरेज हमने 0 नहीं माना है, ये आप ध्यान रखिएगा। हमने नॉइज सिग्नल का एवरेज जो है उसको 0 माना है और उसको रैंडम माना है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सिग्नल है वो हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है ना। अगर आप एवरेज लेते हैं तो इसकी वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। बट द नॉइज कंपोनेंट विच वी हैव कंसिडर्ड एज रैंडम, और हमने ये मान के चले कि ये उसका जो एवरेज वैल्यू है 0 है, तो वो हमेशा छोटा होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो अभी अगर अपन इसका जो एवरेज है उसको अपन SI से कंपेयर करें, तो ये SI जो है हमारा डिजायर्ड सिग्नल है, चाहे इसकी वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी ले लें, इट इज ऑलवेज सेम 0.7769 वोल्ट, राइट। और अभी हमने जो एवरेज कैलकुलेट किया वो हमारा आया 1.187 वोल्ट। तो अभी भी ये हालांकि काफी क्लोज है, पर अभी भी डिजायर्ड सिग्नल हमारे को अचीव नहीं हुआ है। तो अब डिजायर्ड सिग्नल अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने केवल 3 सेट लिए हैं, ठीक है ना। सो इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस देन ओनली वी कैन इंप्रूव द एक्यूरेसी ऑफ आवर एक्सपेरिमेंट, राइट। सो हम क्या करेंगे, एवरेज आउटपुट फॉर 100, 200, 300 एंड 400 एक्सपेरिमेंट्स अगर हम करते हैं तो हमारे क्या रिजल्ट आएंगे वो हम देखना चाहते हैं, ठीक है ना। सो दिस फर्स्ट डायग्राम इज शोइंग द एक्सपेरिमेंटल एवरेज वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर 100 एक्सपेरिमेंट्स। ये है हमारा 200 के लिए, ये हमारा 300 के लिए और ये हमारा 400 के लिए। इसको अगर आप देखें तो इट इज क्लोजली मैचेस विद द डिजायर्ड आउटपुट, ठीक है ना। अब अगर आप इसकी स्मूथिंग करना चाहते हैं तो काफी सारे स्मूथिंग फिल्टर्स भी अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने इस क्लास में केवल आपको सिग्नल एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट समझाया है, ठीक है ना। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम देखेंगे कि ये मूविंग एवरेज फिल्टर कैसे काम करता है, और हम मैटलैब के अंदर एक अच्छा सा एग्जांपल लेके इस मूविंग एवरेज फिल्टर को समझने की कोशिश करेंगे, तो हमारी चीजें बहुत अच्छी क्लियर हो जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और इस मूविंग एवरेज फिल्टर को मैटलैब से कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं उसको देखने के लिए एक वीडियो इसी के जस्ट बाद में अपलोड करूंगा। सो आप लोग टच में रहिए ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट।